Hello everyone. Today we are going to discuss about sleep disorder. So, what is sleep disorder? Now, let's begin with sleep disorder. First, we have the introduction of sleep disorder. आज समझेंगे introduction के बारे में. तो here are the sleep disorder are common. Sleep disorder are serious. Sleep disorder are treatable. Sleep disorder are underdiagnosed. So all these are the type of sleep disorder. First है आपका common, second आपका serious, third one is the treatable or under diagnosed. So all these are the type of sleep disorder. First introduction. Sleep complaints are usually not due to the psychiatric condition. Most sleep disorder are readily diagnosable and treatable. Okay. So sleep complaint are, it is a symptom. It is not a disease. It is not a disease. Complaint are usual not due to the psychiatric condition. It is a normal complaint, not due to the psychiatric condition or any other condition. Most sleep disorder are readily diagnosable and treatable. Most of the sleep disorder, majority of sleep disorder is are readily treatable and diagnosable. We can diagnose, we can treat easily. It's not a complicated issue, it's just a disorder. Okay. So the study include आपका polysomnography PSG, polysomnography, multiple sleep latency test MSLT, and actigraphy. It is relatively non-invasive method of monitoring human rest activity cycle. Okay. So actigraphy क्या है? It is relatively non-invasive. It is a non-invasive method of monitoring human rest activity cycle. Okay. Common diagnostic test, जो common diagnostic test we can use, poly सोमनोग्राफी ऑल नाइट रिकॉर्डिंग ऑफ, इसमें ऑल नाइट हम इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं जिसमें आपका आई मूवमेंट्स का इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी ईईजी, जो कि आपकी ईसीजी की जैसी आपकी एक मशीन होती है, इसमें आपका जो आपकी ब्रेन वेव्स है जिसके बारे में हम, जैसे कि ईसीजी के हम हार्ट की वेव्स के बारे में मेजर करते हैं, सिमिलरली आपकी जो ब्रेन वेव है उनका मेजरमेंट करते हैं, दिस इज ईईजी इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम्स. नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रियोकार्डियोग्राम ईसीजी जो कि होता है आपका, देन इलेक्ट्रोमायोग्राम्स ईएमजी. This is the technique for the evaluation and recording the activation signal of the muscles. Okay, we can use this method for the checkout of the technique of the evaluation and recording of the activation signal of the muscles. Next आपका ear oximetry में आपका non invasive method allowing the monitoring of oxygenation of the patient, hemoglobin, air flow, it nose and mouth. ओके. सो ऑक्सीमेट्री में है आपका नॉन इन्वेसिव मेथड जो कि आपका फर्दर अलाउ करती है आपका फर्दर अलाउंग द मॉनिटरिंग ऑफ द oxygenation of patient and hemoglobin, air flow at the nose of the mouth. Okay. नेक्स्ट आपका thoracic and abdominal wall motion, thoracic and abdominal wall motion. अगला आपका फिजियोलॉजिकल असेसमेंट में आपका इसोफेजियल, जिसमें आपका पीएच, इसोफेजियल पीएच. So all these are the polysomnography. Okay. Next, multiple sleep latency test MSLT. MSLT is the measure of daytime sleepiness. 5 brief naps at the 2-hour interval. The time necessary to fall asleep is measured for each of naps. EEG, EMG, eye movement are the monitored. Okay. सो इट इज़ द मेजर ऑफ डे टाइम स्लीपीनेस, जो कि डे टाइम स्लीपीनेस को मेजर करने के लिए इन दिस द 5 ब्रीफ नैप्स, जिसमें आपका 5 ब्रीफ शॉर्ट नैप्स होते हैं एट द 2-hour इंटरवल में, एंड द टाइम नेसेसरी to all to fall sleep is measure of each of nap, EEG, EMG and eye movement or the monitors are monitored. Okay. So why important is sleep? Why is sleep important? Sleep का आपका importance क्या है? Why sleep is important? तो first आपका recharge your immune system को recharge करने के लिए, encourage muscles and brain growth and muscles को increase करने के लिए, increase memory को increase करने के लिए, improve academic performance को improve करने के लिए,
and decrease stress. Okay, so all these are important for the sleep, and sleep is very important in your life, for your immune system, for your muscles and brain growth, for increase memory, आपके मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस से भी आपका मेमोरी इंक्रीज होती है, तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी आपकी इंक्रीज होती है, एंड स्ट्रेस एंजाइटी को डिक्रीज करने के लिए, रेस्ट के लिए। नेक्स्ट आपका बेकअप सिस्टम में भी आपका सर्केडियन रिदम किस तरीके से आपका वर्क करता है। तो जब आपका डार्कनेस होती है, जैसे आपका 7 o'clock के बाद आफ्टर जैसी डार्कनेस होती है, तो आपका मेलेटोनिन इंक्रीज होता है, और जैसे ही मेलेटोनिन इंक्रीज होता है, तो मेलेटोनिन आपका स्लीप साइकिल को, जो आपकी ग्लैंड उसको एक्टिवेट करता है, हार्मोन रिलीज होते हैं, एंड आप स्लीप के पैटर्न में जाते हैं। जैसे आपका सनराइज होता है अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे से, आपका लाइट जैसे आता है, तो मेलेटोनिन का लेवल कम होता है, मेलेटोनिन का लेवल कम होता है, तो आपको अवेकनिंग स्टेज है वो आपकी एक्टिवेट होती है। ठीक, तो स्लीप सिस्टम आपका कुछ इस तरीके से वर्क करता है। इसमें आपका रोल होता है आपका थैलेमस का, गाबा का, एंड ACH आपके जो, और इसके अलावा भी और मोर हॉर्मोन्स इनका रोल होता है। स्लीप एंड वेक साइकिल में यदि हम देखें, तो आपका जो सर्केडियन एंड होम्योस्टैटिक रेगुलेशन ऑफ द स्लीप जो होता है, सो स्लीप आपकी ड्राइव होती है सर्केडियन रिदम अलर्टिंग द सिग्नल होता है, जो कि 9 AM उसका 3 PM धीरे धीरे करके इंक्रीज होता है, एंड आफ्टर 9 PM के बाद ये डिक्रीज होना शुरू होता है 7, 8 और 9 PM के बाद टिल दी आपका 9 AM तक। तो बेकअप एंड स्लीप साइकिल इस हेयर, जिसके बारे में आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे। ओके, अब आपका जो स्लीप उसके भी आपकी स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है आपकी वेरी लाइट, सेकंड होती है आपकी लाइट स्लीप, थर्ड होती है डीपर स्लीप, फोर्थ होती है आपकी वेरी डीप स्लीप, मोस्ट रिस्टोरेटिव जो कि आपकी होती है स्टेज 5 होती है आपकी REM स्लीप व्हेन वी ड्रीम। ओके, सो जो 4 to 5% स्लीप होती है, दिस इज द लाइट स्लीप। आप लाइट स्लीप जिसमें आपकी मसल्स एक्टिविटी स्लो डाउन होती है, और ओकेजनली मसल्स आपका ट्विचिंग होती है। 45 to 55% होती है जो कि आपकी स्टेज 2 होती है आपकी लाइट स्लीप, जिसमें आपका ब्रीदिंग पैटर्न एंड हार्ट रेट स्लो डाउन होता है, एंड स्लाइड आपका डिक्रीज होता है इन दी बॉडी टेम्परेचर। ओके, एंड स्टेज थर्ड में होता है आपका 4 to 6% डीप स्लीप, 4 to 6% आपका डीप स्लीप होना स्टेज थर्ड में, एंड बिगेन डीप स्लीप बिगेन ब्रेन बिगेन टू जनरेट स्लो डेल्टा वेव। अब यहाँ पे आपका ब्रेन है वो स्लो डेल्टा वेव यहाँ से जनरेट शुरू करना करता है, यहाँ पर स्लोली आपका जनरेट होती है स्लो डेल्टा वेव। स्टेज 4 में होता है आपका वेरी डीप स्लीप। वेरी डीप स्लीप में आपका रिदमिक ब्रीदिंग होती है, लिमिटेड आपका मसल्स एक्टिविटी होती है, ब्रेन आपका प्रोड्यूस करता है आपके डेल्टा वेव को, एंड 20 to 25% होती है रैपिड आई मूवमेंट, आपका ब्रेन वेव स्पीड अप, ब्रेन वेव यहाँ से आपकी स्पीड अप हो जाती है, एंड ब्रेन वेव स्पीड अप एंड ड्रीमिंग ऑक्यूर, यहाँ पे आपका ड्रीम होता है, मसल्स रिलैक्स, मसल्स आपकी रिलैक्स होती है, हार्ट रेट इंक्रीज, ब्रीदिंग इज रैपिडली एंड सेलो, ब्रीदिंग आपकी रैपिडली एंड सेलो होती है, बट आपकी हार्ट रेट यहाँ पे आपकी इंक्रीज होती है। ओके, तो ये वापस से आपका लाइट स्लीप में एक्टिवेट होती है, जिसमें आपका आता है स्टेज 5। स्टेज 5 में जो कि आपका REM रैंडम आई मूवमेंट होती है, मतलब वापस से आपका जो नॉर्मल वेरी नाइट है नायर में जिसको हम बोला जाता है, तो ये आपका एक्टिवेट करते हैं वापस से आपकी वेरी लाइट फर्स्ट स्लीप में जाने के लिए, जिसमें आपका स्लीप आपका 5 आता है। एंड टाइप ऑफ स्लीप डिसऑर्डर की यदि हम बात करें, तो टाइप ऑफ स्लीप डिसऑर्डर में आपका फर्स्ट है इंसोमिया, दिस इज द लैक ऑफ स्लीपिंग, हाइपरसोमिया एक्सेसिव आपका स्लीपिंग, पैरासोमिया एंड स्लीप रिलेटेड ब्रीथिंग डिसऑर्डर, एंड स्लीप एपनिया एंड सर्केडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर। ओके, सो इस तरीके से आपका पैरासोमिया होता है, आपका इंसोमिया होता है, हाइपरसोमिया होता है आपका ना बहुत ज़्यादा नींद आना, बहुत कम नींद आना, या इंटरवल में दिन में आपको नींद आना, एंड स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर होते हैं, इसमें आपको स्लीप एपनिया इसको बोला जाता है, स्लीपिंग के समय आपको ब्रीदिंग का डिसऑर्डर होना, सर्केडियम आपका रिदम में आपका चेंजेस होना, दिस इज द सर्केडियम रिदम आपका स्लीप डिसऑर्डर, जो कि आपका
यूजुअली जो हमारा स्लीप होता है वो 7 को रात को 8-9 के बीच होता है, तो सुबह 8 9 तक। लेकिन जो रिदम है उसका आपका सर्केडियन रिदम है, उसमें आपका चेंजेस होना। ठीक है। और पैरासोमिया में इसके साथ साथ ही आपका एबनॉर्मल आपकी बॉडी का मूवमेंट होना, ठीक है, इस तरीके के आपका रैंडमली आप उससे इसके अलावा आपका बिहेवियर में, इमोशनल में आपका शिफ्ट होना, और आपको ड्रीम्स होना है ना, परसेप्शन होना ड्रीम्स का आपका। तो ये आपकी जो कंडीशन है ये आपको होती है, आपको लैक ऑफ मीन्स आप जब आपका पैरासोमिया की स्टेज में होते हैं तब ये कंडीशन होती है आपका। स्लीप वॉकिंग आपने सुना होगा कि सोते सोते मतलब कोई चलने लगता है, राइट, या फिर बहुत ज्यादा खर्राटे लेना, या फिर बॉडी के जो पार्ट्स है उसका मूवमेंट होना, आपको ड्रीमिंग वगैरह होना, कुछ ऐसा परसेप्शन होना, कुछ आपको इल्यूशन वगैरह दिखाई देना, ये जो स्टेज है ये आपको पैरासोमिया की कैटेगरीज में, आपको पैरासोमिया के टाइप में आती है। अब इंसोमिया क्या होता है? इंसोमिया है आपका डेफिनेशन है, इंसोमिया एंड एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग। या तो एक्सेसिव आपका डे टाइम में स्लीपीनेस होना, या फिर आपका इंसोमिया एंड एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, या तो फिर लैक ऑफ स्लीप होना, या फिर डे टाइम में आपका एक्सेसिव स्लीपीनेस होना। और दिस इज आर प्राइमरी कंप्लेंट, जो कि आपकी प्राइमरी कंप्लेंट होती है रिगार्डलेस ऑफ स्टेज ऑफ द डिसीज, जो कि रिगार्डलेस ऑफ स्टेज ऑफ डिसीज की वजह से होती है। इंसोमिया आपका होता है इंक्लूड द डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप, इंसोमिया इसमें आपका इंक्लूड डिफिकल्टी होना, आपका स्लीप में आ जाने में आपको डिफिकल्टी होना, डिफिकल्टी स्टेइंग अस्लीप, स्लीप में आपका डिफिकल्टी होना, अर्ली मॉर्निंग आपका अवेकनिंग होना। तो एक तो स्लीप में जाने में भी आपको प्रॉब्लम होना, इंसोम्निया इंक्लूड डिफिकल्टी फॉलिंग स्लीप एंड स्टेइंग अस्लीप, ज़्यादा लंबे समय तक अस्लीप रहने में भी आपको डिफिकल्टी होना, और अर्ली मॉर्निंग आपका अवेकनिंग हो जाना ऑटोमेटिकली। ओके, so insomnia is not defined by the number of hours of sleep, but rather by the individual's ability to sleep long enough to feel healthy and alert during the day. So what is insomnia? Insomnia is not defined by the number of hours of sleep. It's not defined the number of hours of sleep, but rather by an individual's ability to sleep long enough to feel healthy and alert during the day. The normal requirement of sleep range between 4 to 10 hours. Insomnia is a symptom, not a disorder by itself. So insomnia is a symptom, it's not a disease or disorder itself. And the normal requirement of sleep 4 to 10 hours, less minimum is 4 and maximum is the 10 8 to 9 या 10 आवर्स। अब ये डिपेंड करता है आपका स्लीपिंग का जो पैटर्न है, डिपेंड करता है आपका वर्क लाइफ बैलेंस पे, आप किस तरीके का वर्क करें, आप कितना एक्टिविटी करें, उसके ऊपर ये कम्प्लीटली आपका डिपेंडेंट होता है आपका इंसोमिया। तो कितना आपको स्लीप का रिक्वायरमेंट है, तो ये कोई आपको एक्सेप्ट कर नहीं सकता है कि किसी पर्सन को 8 आवर चाहिए, किसी को 9 आवर या किसी को 10 आवर। ये आपको कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपका स्लीपिंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड होता है, आप कितने समय तक आपका वर्क कैसा है, कितना आप बॉडी का यूज कर रहे हैं। Next, insomnia assessment. Insomnia determine the pattern of sleep problem, frequency, associated event, how long it take to go to sleep, and how long the patient can stay asleep. Okay, so insomnia means आपका determine करता है further the pattern of sleep में problem होना, like आपका frequency में, associated event में, and how long it take to go sleep, कितना लंबा समय लग रहा है पेशेंट को सोने के लिए। कई बार ऐसा रहता है कि देखो हम बेड पर हम लेट जाते हैं, लेकिन हम सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको नींद नहीं आती, राइट। तो वो ये कितना समय आपको लगता है, एंड हाउ लॉन्ग द पेशेंट कैन स्टे अस्लीप, और कितने लंबे समय तक वो अस्लीप रह सकता है, कितने लंबे समय तक वो सो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करती है। And include a full history of alcohol and caffeine intake and other factor that might affect sleep. Okay, तो इसमें आपका इंक्लूड होता है या फुल हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल एंड कैफीन इंटेक। अब कैफीन का और अल्कोहल का भी आपका बहुत ज़्यादा आपका सर्केडियन रिदम पर अफेक्ट करता है, एंड अदर फैक्टर दैट माइट बी अफेक्ट स्लीप। इनकेस आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर आप कैफीन लेते हैं, जो आपने देखा होगा कि नाइट के समय पे जो ड्राइवर्स होते हैं या कभी हम कुछ वर्क कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी वगैरह है, तो हम कॉफ़ी ले लेते हैं, राइट। तो कॉफ़ी लेने की वजह से क्या होता है, चाय एंड कॉफ़ी में क्या होता है, आपका कैफीन होता है, निकोटिन है, कैफीन है आपका कॉफ़ी में। तो
कॉफ़ी लेने की वजह से आपको कुछ समय तक नींद नहीं आती है, थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर हैं अल्कोहल है आपकी स्लीप पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। अगला है रिव्यू करंट मेडिकेशन दैट पेशेंट इज टेकिंग टू एलिमिनेट दिस एज पॉसिबल कॉज। सो रिव्यू नेक्स्ट आपका करंट मेडिकेशन, जो कि आपका करंट मेडिकेशन जो कि करंट मेडिकेशन दैट पेशेंट इज टेकिंग, जो भी मेडिकेशन वगैरह पेशेंट लिखता है वो भी आपका अफेक्ट करती है, एलिमिनेट करती है आपके दिस एज पॉसिबल कॉज में। टेक अ हिस्ट्री टू दी रूल आउट फिजिकल कॉज एंड और साइकोसोशल कॉज। ओके, सो रिव्यू करंट मेडिकेशन, जो कि आपका करंट मेडिकेशन दैट पेशेंट को लेता है वो भी आपका एलिमिनेट करते हैं दिस पॉसिबल कॉज में। टेक अ हिस्ट्री टू रूल आउट फिजिकल कॉज, इसके अलावा आपका फिजिकल कॉज और साइको सोशल कॉज भी आपका अफेक्ट करता है। गुड। पॉसिबल पॉसिबल कॉज ऑफ इंसोमिया क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको कॉजेस की वजह से हेडेक की वजह से हो सकता है, बैड और विविड ड्रीम होना आपका, प्रॉब्लम ऑफ ब्रीदिंग, पॉसिबल कॉजेस ऑफ इंसोम्निया, राइट, डिप्रेशन, फेयर एंड एंजाइटी की वजह से, लेग क्रैम्प्स की वजह से, फीवर एंड नाइट स्वेट की वजह से, एब्डोमिनल पेन एंड नीड टू पास यूरिन और मूव बबल, दैट इज द पॉसिबल कॉजेस जो कि आपके हो सकते हैं। अब एसोसिएटेड प्रॉब्लम इसमें क्या हो सकती है इंसोमिया, insomnia associated problem, at least one or more of the following malaise, feeling of general discomfort or uneasiness। okay, तो फर्स्ट आपको malaise सुना, so what is the malaise? malaise आपका feeling of the general discomfort और uneasiness। नेक्स्ट आपका attention concentration impairment, attention and concentration आपका impairment होना, सोशल वोकेशनल डिस्फंक्शन होना एंड पुअर वर्क होना। ओके, सोशल वोकेशनल डिस्फंक्शन एंड पुअर वर्क, मूड डिस्टर्बेंस और इरिटेबिलिटी होना। ओके, मूड डिस्टर्बेंस होना और इरिटेबिलिटी होना एंड डे टाइम स्लीपीनेस होना, डे टाइम में एक्सेसिव आपका स्लीप होना, नींद आना एंड प्रो proneness for error or accident at the work while the driving। ओके, इसके बाद और इसमें प्रोन होना आपका फॉर द एरर ऑफ एक्सीडेंट या फिर वर्क वाइल दी, जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं उस समय पे या फिर एट द टाइम ऑफ द वर्क, टेंशन, हेडेक और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम इन द रिस्पॉन्स टू स्लीप लॉस। टेंशन की वजह से, हेडेक की वजह से, इनके जब हमको टेंशन होता है या फिर हमको हेडेक हो रहा होता है, राइट, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है तो हमको नींद भी नहीं आती, या फिर कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम है तो जिसके रिस्पॉन्स की वजह से भी आपको स्लीप लॉस हो सकता है। नेक्स्ट आपका कंसर्न और वरी अबाउट द स्लीप, कंसर्न और वरी होना बहुत ज़्यादा स्लीप के बारे में या किसी अदर चीज़ के बारे में, तो वो भी आपका एक पॉजिटिव फैक्टर आपका हो सकता है, राइट। कुछ मेडिकेशन भी होती हैं जो आपको इंसोमिया को कॉज करती हैं, इसके अंदर आती है आपकी टाइप ऑफ मेडिकेशन एंड एग्जांपल हम देखेंगे। सीएनएस स्टिमुलेंट आती है जिसमें आपका डी एम्फेटामाइन होती है एंड मिथाइल हेनिड्रेट, राइट। तो ये जो मेडिकेशन होती है जो आपके स्लीप पैटर्न को अफेक्ट करती है, डी एम्फेटामाइन एंड मिथाइफेनिड्रेट। ब्लड प्रेशर में जो आपकी ड्रग यूज होती है, ब्लड प्रेशर ड्रग, जिसमें आपका अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर जो भी आपकी स्लीप पैटर्न को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आपकी रेस्पिरेटरी मेडिकेशन आती हैं जिसमें आपका एल्ब्यूट्रॉल एंड थियोफाइलिन जो आपके इसमें रिड्यूस करती हैं आपका मैं आपकी स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करती हैं। डिकंजेस्टेंट आती है, डिकंजेस्टेंट में आपकी फिनाइल फिनाइल फिन आती है एंड स्यूडो एपी स्यूडो स्यूडोक्विड्राइन आती है एंड फिनाइलिपिनाइन आती है एंड हार्मोन्स आपका आता है थायरॉक्सिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अदर आपके सब्सटेंस आते हैं अल्कोहल, निकोटिन एंड कैफीन। ऑल दीज सब्सटेंस आप क्या चाहते हैं इसमें। टाइप ऑफ इंसोमिया, टाइप ऑफ इंसोमिया में आपका आएगा ट्रांसिएंट इंसोमिया, शॉर्ट टर्म इंसोमिया एंड क्रॉनिक
इंसोमिया, ओके। सो ट्रांसिएंट इंसोमिया जिसमें आपका स्लीप होना आपका लेस देन 4 वीक्स, ट्रिगर बाय एक्साइटमेंट और स्ट्रेस की वजह से, ऑक्यूर व्हेन अवे फ्रॉम द होम, ओके। सो ट्रांसिएंट इंसोमिया में क्या होता है आपका लेस देन 4 वीक, ट्रिगर बाय द एक्साइटमेंट की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से होना, ऑक्यूर व्हेन द अवे फ्रॉम होम, एंड शॉर्ट टर्म की वजह से, शॉर्ट टर्म 4 आवर to 6 मंथ हो सकता है, ऑन गोइंग स्ट्रेस एट दी होम और वर्क। नेक्स्ट मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से, लाइक आपका साइकेट्रिक इलनेस एंड क्रोनिक आपका पुअर स्लीप होना एवरी नाइट और मोस्ट नाइट फॉर लेस देन 6 मंथ, एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर प्रिवलेंस रेट होता है इसका आपका 9%। Management of insomnia. So, what is the management of insomnia? First, treat underlying cause whenever possible. जो भी अंडरलाइंग कॉज है उनको ट्रीट करना whenever possible है। एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड एक्सरसाइज, पेशेंट को एडवाइस करना अवॉइड एक्सरसाइज, हैवी मील्स एंड अल्कोहल और conflict situation just before bed, okay. So we have to advise the patient to avoid exercise, heavy meals, alcohol और conflict situation before the bed, right। तो लड़ाई झगड़ा करके नहीं सोना है, अपने मन को एकदम शांत करके, जो भी आपके मन में लोगों के प्रति आपका कॉन्फ्लिक्ट है, वरीज है ना, ये जेलेसी है, इस साइड उस सारी चीज़ों को आपको हटा करके अपने माइंड को क्लटर फ्री करके, वर्कलोड को फ्री करके आपको सोना है, लाइट माइंडेड होकर सोना है। इनकेस सारे दिन का वो है वो आपके माइंड में चलता रहता है, वो आपके स्लीपिंग पैटर्न में आता है और आपको स्लीपिंग में डिस्टर्बेंस होता है और वो फर्दर आपके ड्रीम्स में आ जाता है। गुड। सो प्लेन एस्पिरिन और पैरासीटामोल इन लो डोजेस, लो डोजेस में आप प्लेन एस्पिरिन और पैरासीटामोल ले सकते हैं, मे बी हेल्पफुल और गिव short acting hypnotics और sedatives, ओके। सो प्लेन एस्पिरिन, एस्पिरिन ले सकते हैं, पैरासीटामोल ले सकते हैं इन दी लो डोजेस में, जो कि आपका मे बी हेल्पफुल होती है। गिव टू शॉर्ट एक्टिंग हिप्नोटिक एंड सेडेटिव ड्रग में अंडरलाइंग जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कॉज करना, अंडरलाइंग आपके डिप्रेशन को हेल्प करना, okay? नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, गो टू दी बेड व्हेन दी स्लीपी, जब भी आप स्लीपी फील करें गो टू दी बेड, आप बेड पे जाएं। पहले से नींद नहीं आ रही तो बेड पर लेटे ना रहें लंबे समय तक, इन केस आपको लग रहा है स्लीपी अभी नींद आ रही, नाइट के टाइम पे आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, सोने से पहले आप एफर्मेशंस वगैरह कर सकते हैं, कुछ मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड वगैरह, ताकि आप स्लीप पैटर्न वो आपका नॉर्मल रहे। गेट अप दिस सेम टाइम एवरी मॉर्निंग, सेम टाइम एवरी मॉर्निंग में आपको सो करके उठना चाहिए, जिससे कि आपकी एक रूटीन, एक हैबिट बन जाती है। गेट अप व्हेन स्लीप ऑनसेट डज नॉट occur in 20 minutes and go to another room. Get up when sleep onset does not occur, यदि आपका sleep onset occur नहीं है in 20 मिनट में and occur in 20 मिनट एंड गो टू अनदर रूम, या फिर आप दूसरे रूम में जा सकते हैं ताकि वापस से आपको नींद ना आए। एंड नो डे टाइम हैपनिंग, नो डे टाइम आपको नैपिंग नहीं लेना है, नो डे टाइम नैपिंग। रिड्यूस टू रिड्यूस और स्टॉप कैफीन, अल्कोहल एंड निकोटिन, एक्सरसाइज 4 आवर्स बिफोर बेड, बेड पे जाने से 4 आवर पहले आपको एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है। हिप्नोसिस टू डिक्रीज एंजाइटी एंड टेंशन एट बेड टाइम, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन, ये सारी प्रैक्टिस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्मेकोलॉजिकल में आपकी मेडिकेशन आ जाती हैं, आपकी बेंचोडाइजेपिन जिसमें आता है आपका और नॉन बेंजोडाइजेपिन, बेंजोडाइजेपिन में आपकी आती है लोरिजेपाम 1 to 6 mg की आती है, क्लोनिजेपाम आती है 0.5 से लेके 5 mg की, एंड टेमाजेपाम आती है 10 से लेके 20 mg की, एंड फ्लूराजेपाम आती है जो कि आपका 15 से लेके 30 mg की, एंड एल्प्राजोलम आती है आपकी 0.25 से लेके 1 mg की, एंड ट्राइजोलेम आती है जो कि आपकी 0.125 से लेके 25 mg की, एंड नॉन बेंचेडिपिन आती है आपका जोल की डेंस जो कि 10 to 20 mg एच में, पूरी।
अदर क्लासेस ऑफ मेडिकेशंस में आपकी आ जाती है मेलेटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। इसमें आपका मेलेटोनिन है 10 to 20 mg, एंटी डिप्रेसेंट है आपका ट्रांसेडोन जो कि आपकी 500 से 200 mg की आती है, एंड आपका मिराटाजेपिन आती है आपकी 15 से लेके आपकी 45 mg का, एंड डॉक्सीपिन आती है 15 से लेके 150 mg का, एंड एमी ट्राइप्टेन आ जाती है आपकी, एमिट्रिप्टिलिन आपकी 50 से लेके 200 mg एज पर कंडीशन, एंड एंटी साइकोसिक मेडिकेशन आती है जिससे नेक्स्ट अदर क्लासेस ऑफ मेडिकेशन लाइक आपका मेलेटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मेलेटोनिन जो कि आपकी 2 to 10 mg की मेडिकेशन आती है जो कि आपका स्टिमुलेट करती है आपके मेलेटोनिन हार्मोन को, जो कि आपका स्लीप हार्मोन होता है। तो जैसे ही आपका मेलेटोनिन का लेवल इंक्रीज होता है, व्हेन द लेवल ऑफ मेलेटोनिन गेट इंक्रीज, सो स्लीप में आप फॉल होते हैं, तो इसकी वजह से आपको स्लीप होता है। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन आते हैं जो कि आपके डिप्रेशन को आपका रिड्यूस करते हैं। इसमें आपका आता है ट्राइजेडोन एंड मित्राजेपिन एंड डॉक्सीपिन एंड एमिट्राइटिप्टिलिन। ओके, सो ये जो मेडिकेशन है जो कि आपके एंटी डिप्रेसेंट में आती है, बट विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये सारी मेडिकेशन हम नहीं लेते हैं, विदाउट साइकेट्रिक प्रिस्क्रिप्शन। सो 500 to 200 mg की आती हैं, एंड 15 to 45 mg की आती है, 50 to 150 mg की आती है, एंड 50 to 200 mg की आती है। एंड एंटी साइकोटिक मेडिकेशन आती है, एंटी साइकोटिक्स में आपका ओलेनजेपिन आती है, ओलेनजेपिन आपकी 2.5 mg एंड 10 mg की। ओके, एंड BGRAS आती है आपका, जिसका आपका साइड इफेक्ट एंड सेफ्टी, जिसमें आपका एमनेसिया, रेसिड्यूल सेडेशन, लॉन्गर एक्टिंग आपका BGRS, एंड अब्यूज एंड डिपेंडेंस एंड प्रोलॉन्ग यूज कैन लीड टू विड्रॉवल सिम्टम्स, हेडेक, इरिटेबिलिटी, डिजीनेस एंड रिबाउंड इंसोमिया, ट्राइसोलम एंड इंक्रीज फॉल रिस्क, cognitive effective in the early। ओके, सो ऑल मेडिकेशंस जिसमें आपके आ जाते हैं, आपका एमनेसिया, रेसिड्यूल आपका सडेशन जो कि नो लॉन्गर एक्टिंग के लिए आती है, अब्यूज एंड डिपेंडेंस मेडिकेशन आती है, प्रोलॉन्ग यूज कैन लीड टू विड्रॉवल सिम्टम्स, एंड नेक्स्ट बेंजोडाइजेपिन। इसका यूजेस क्या होता है? बेंजोडाइजेपिन आर the drug of choice for the treatment of insomnia. This is the first line drug of choice for the insomnia, treatment of the insomnia, and flurazepam आती can be used for up to 1 month with the little tolerance, and temazepam can be used for up to 3 months with the little tolerance, and intermittent use of recommended every 3 days use for no longer than 3 to 6 months, and benzodiazepine with short half lives may be used for the patient with difficulty falling asleep but can produce rebound insomnia। Okay, सो ऑल दीज मेडिकेशंस जो आपकी आ जाती है, आपका बेंजोडाइजेपिन जो कि आपका चॉइस ऑफ ड्रग होती है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। फ्लूरेज़ेपाम आती है, कैन बी यूज फॉर दी 1 month और विथ लिटिल टॉलरेंस, एंड temazepam आती है, कैन बी यूज फॉर अप टू 3 months और मोर देन 3 months विथ लिटिल टॉलरेंस, and intermittent use of recommended every 3 days and alternatively इसको हम यूज करते हैं, and use for no longer than 3 months, and benzodiazepines with short half lives आती may be best for the patient with difficulty falling asleep but can produce rebound insomnia। नेक्स्ट बारबीट्रेट आती है, बारबीट्रेट आपका ड्रग डोज, ड्यूरेशन एंड हाफ लाइफ। ओके, सो ड्रग में आपकी आती है फेनोबारबिटेट, फेनोबारबिटोन्स आती है, एंड एमोबारबिटेट आती है, एंड पेंटोबारबिटल आती है, एंड सेकोबारबिटल्स आ जाती है, राइट। तो आपकी फेनोबारबिटोन्स में आती है 32
110 एंड एमोबार्बिटल में आती है आपकी 50 टू 200 mg की, जो कि आपकी लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट होती है, शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट होती है। एंड सेकोबार्बिटल जो होती है दिस इज द शॉर्ट इंटरमीडिएट। ओके, इसका ड्यूरेशन होता है आपका 24 टू 140 आवर्स एंड 8 टू 12 42 आवर्स, 15 टू 48 आवर्स एंड 19 टू 34 आवर्स। ओके, हाइपरसोमिया नेक्रोपेल्सी, हाइपरसोमिया आपका हाइपरसोमिया नेक्रोपेल्सी, extreme daytime sleepiness, frequent brief naps, rare familial present in the 20s and 30s, require sleep study and daytime. Main symptoms cataplexy, sudden usually brief loss of muscle tone. Main symptoms इसमें होता है cataplexy. What is cataplexy? Cataplexy is the sudden usual brief loss of muscle tone induced by emotion. Okay, so sudden and usually आपका briefly loss of muscle tone, आपका muscle tone का loss होना induced by the emotion. Sleep आपका paralysis होना, symptoms of the necroplasy, paralysis occurring just before a person falls asleep, and hypnagogic hallucination, REM, sleep while the conscious. Okay, so all these medications is there. And necropelsy, necropelsy diagnosis आपका history, first is history collection, multiple sleep latency test, MSLT, excessive daytime sleepiness, and mean sleep latency, then the 5 minute sleep onset. ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेक्रोपेल्सी, नेक्रोपेल्सी के लिए जो मेडिकेशन आपकी यूज होते हैं, जो कि ऑल अभी हमने देखा, ऑल दिस मेडिकेशंस. Parasomnias, parasomnias are the category of sleep disorder that involve abnormal and unnatural movement, behavior, emotion, perception, and dream that occur while they falling asleep, sleeping between the sleep stages, or arousal from the sleep. Most parasomnias are the disassociated sleep state which are partial arousal during the transitions between the wakefulness and the NREM sleep, or wakefulness and REM sleep. टाइप्स में आपका रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, नाइट टेरर, स्लीप वॉकिंग, एंड आपका स्लीप नींद में आपका वॉकिंग होना, स्लीप वॉकिंग, दिस सोमना, सोमनम्बुलिज्म एंड स्लीप एन्यूरेसिस, आपका यूरिन का स्लीप में आपके समय पे यूरिन का पास होना, आरईएम आपका स्लीप बिहेवियर होना. ओके, पैरासोमनियास, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसमें आपका इंटेंस डिस डिस्थेसिस में होता है आपका अनप्लेजेंट एबनॉर्मल आपका सेंसेशन होना, रिपीटेटिव आपका जर्किंग होना, boars at the bedtime, often awaken patient, often familial progresses with age, etiology is unknown, may be caused by uremia, iron deficiency anemia और alcohol abuse. ट्रीटमेंट में है आपका कार्पिडोपा, लीवोडोपा 25 mg 100 mg, QHS 75% रिस्पॉन्ड, क्लोनिसेपाम 0.5 से लेके 2 mg QHS. ओके, नेक्स्ट है पैरासोमनियस, दिस इज द नाइट टेरर, स्लीप आपका टेरर्स emerge from the stage 3 to 4 sleep, autonomic arousal in the interrupted hemisphere, arousal is abrupt, occur primary in the children, sudden arousal from slow wave, sleep and cry, etc. Parasomnia, sleepwalking, somnambulism. Okay, so emerge out of the stage 3 and 4 sleep, may overlap with the night terror, involve complex behavior, sitting up in the bed, walking, dressing, eating, and even driving a car, last few minutes, mostly in the children. Treatment reassurance, it safely restraint, and if frequent, consider. Okay, parasomnia, sleep enuresis, involve micturition during the sleep following attainment of the control while awake, usually idiopathic, may be caused by urogenital disease or other medication problem. It may represent delay micturition, treatment, bladder training, and imipramine. Okay,
Next, the parasomnias, REM sleep behavior, REM behavior disorder. It is a rare neurological disorder in which a person does not become paralyzed during REM, random eye movement, sleep, and thus act out dreams. Experiment with the cat's lesions to cellular nucleus in the medial medulla near the LC from the inhibitory synapse with motor neurons. Lack of REM atonium allow patient to the intact his dream motor activity may be harmful. Most patients are elderly. The condition usually idiopathic neurological cause in one third treatment sleep study and clonazepams. Sleep disorder, breathing sleep apnea. Symptoms include loud snoring, choking, गैस्पिंग ड्यूरिंग दी समय जो आप समय के समय बहुत ज़्यादा स्नोरिंग करना, खराटे लेना, चोकिंग होना, गैस्पिंग होना है ना, दी ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होना ड्यूरिंग द स्लीप एसोसिएटेड विद द डे टाइम स्लीपिनेस, साथ में डे टाइम में स्लीपिनेस होना. एंड रिस्क फैक्टर में क्या है आपका इंक्लूड आपका ओल्डर एज हो गया, मेल सेक्स हो गया, सीबीडी रिस्क हो गया और सेंट्रल स्लीप एपनिया होना एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होना. ऑल दीस आर ईटियोलॉजी किस वजह से हो सकता है, ओबिसिटी एट दी रिस्क फैक्टर हो सकता है, एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटीज लाइक नेक ओबिसिटी होना, नैरो एयरवे होना, फिक्स आपका अपर एयरवे लीजन्स होना, एग्जांपल पॉलिप इनलार्ज होना एंड आपका टॉन्सिल्स, अल्कोहल एक्सेट्रा. गुड. डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ द स्लीप एपनिया में आपका पॉलीसोमनोग्राफी इट इज द डिटेल ओवरनाइट स्लीप स्टडी विथ द रिकॉर्डिंग ऑफ ईसीजी. ईसीजी में आपका अरिथमियास चेक करना, ईईजी में ब्रेन वेव के लेवल को चेक करना एंड वेंटिलेटरी वेरिएबल्स, मूवमेंट ऑफ द चेस्ट वॉल एंड एयर फ्लो इट द माउथ एंड नोज, arterial O2 saturation, finger ear oximetry and heart rate. मैनेजमेंट है अपर एयरवे मसल स्टोन, माइल्ड OS. Avoid alcohol and sedative. Upper airway lumen size 1 mild to moderate OSA. Overweight reduction. Avoid supine position and use oral prosthesis to keep away patient. Severe OCMS surgery and bypass occlusion. Severe OSL में tracheostomy. Low weight loss, continuous positive airway pressure, CPAP and medications. Okay, all right. All these are management. Circadian rhythm disorder. The sleep disorder cycle is under the circadian control of oscillator and can be disrupted by the misalignment between an individual's biological clock and external demands on the sleep cycle. Circadian rhythm sleep disorder usually present with either insomnia or hypersomnia depending on the individual's performance requirement. Two commonly occurring circadian rhythm sleep disorder are jet lag and shift work sleep problems. Okay. jet lag jet lag occur when a person travel across time zones and the external environment time is mismatched with the internal circadian clock. Symptom of malaise, insomnia, hypersomnia, fatigue, poor performance, gastrointestinal disturbance, and treatment. Short acting benzodiazepines receptor agonist or 0.5 to 5 mg melatonin taken at the appropriate target bedtimes. Shift work, night shift work cause misalignment in the sleep wake cycle and the circadian rhythm. Last is associated with a decrease in the alertness, performance, and quality of daytime sleep. Treatments short acting benzodiazepines receptor agonist or 0.5 to 5 mg melatonin taken at the appropriate target bedtime. Okay. Principle of sleep hygiene. Sleep is sleep in cool, quiet, and comfortable place. Keep regular sleep wake up schedule. When having trouble sleeping at night, avoid daytime nap. Exercise less than 4 hours before the bed. Avoid caffeine. Food close to bedtime. Make a bed at restful haven for sleep. Don't worry about not getting enough sleep. Change sleeping replace.
place if unable to sleep, right? So thank you for watching this. Thank you. If you have any doubt regarding this, you may ask. Bye bye.